Hello students, this is your computer science teacher Virendra. Once again, a warm welcome to on my YouTube channel. Students, in today's class, we are going to proceed further for new topics. Students, as you know that in the previous video, we have given you some kind of topics which is related to your LibreOffice base. Students, the topic which we have studied earlier, that is your data type, what are the objects given in LibreOffice base, interface of the LibreOffice base, and one more thing I have just discussed here, how to start the LibreOffice base as well as how to create the blank database. These things is already discussed in the previous video. Students, in today's video, we are going to have the practical demonstration about the how to create your table. Right, students? Today we are going to have the topic how to create your table. Okay? And day by day, once we'll proceed further, we will also have some more details that what are the operations performed on the database which is created, right? So students, right now it's time to start your today's video, and now I'm going to proceed it. Students, first of all, I'm going to start the LibreOffice base. I have clicked on start all programs. Then after LibreOffice 7.3, I will scroll down this one, and then this is your option LibreOffice base. I have clicked on it. Now within few seconds it will going to open here. So first of all, we'll have a little bit understanding about the some of the topics which is still not getting involved in this video, right? Likewise, if I told you that how to open the existing database, you should know about this, right? And how to create a new database, already I have discussed it. Okay, how to save this thing is, how to delete, whatever things are required here, that will be already discussed in the previous video. But in this video, main focus is how to create your table. Now students, I am going to select this one option, open the existing database file, click on open, and finally I am going to search the database which is already created, that is your student, and then finally click on open button. Now this is the way to open the existing database, right? Now students, what things are required to create the database? What are the important steps to create the database? These things are required for this. Okay, so as you know that this is your database pane, this is your database object pane, and this is your task, and whatever things I have already told you, okay, that things are required to understand. So let me brief about the interface about one more time. First thing is, this one is called object, database object pane. 4 objects are there: table, queries, forms, report. And then after, this is your database task pane. In this, whatever, suppose you have created a clicked on table, so you will have the task to create the table, this one, right? Create table in design view. Automatically the task will be added in the task pane, and once whatever the table you have created, automatically the object list is going to have in the bottom window, that is your table, right? Whatever the tables you have created one by one, that list will be shown in this table window, right? Okay, so students, now I'm going to have the whatever the required steps to have the table. Okay, so students, in this we are going to create the table by using the table wizard. Okay, we are going to create the table by using the table wizard, right? So how we are going to do that? First of all, what you'll do here, we'll follow the simple steps. Okay, so if you see your book, according to your book, there are only 4 steps are there, right? And after that, you will have the what are the kinds of view, right? So according to the step number 1, first of all, we'll have the click on create table like this. I will made a double click here.
मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया है. ओके, वंस इट इज डबल क्लिक्ड ऑन दैट, ओके, व्हाट आई नीड टू डू हियर, let me minimize, let me shorten the window here. Okay, right now our main objective here that we want to create the structure of table. हमें केवल यहाँ पर स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है जिसमें कि हम यहाँ पर ये तय करेंगे कि हमारे फील्ड का नाम क्या हो, यानी कि एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम का नाम क्या हो. जब ये डिसाइड कर लेंगे तो कॉलम का नाम डिसाइड हो जाएगा. उसके बाद हम एक एक करके रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे. ठीक है, तो अभी तो हमें ये सीखना है कि टेबल विजार्ड की हेल्प से हमें किस तरीके से हमें अपने टेबल को क्रिएट करना है. तो अभी तक मैंने क्या किया है, टास्क पैन में गया और मैंने क्रिएट टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया. इस पर क्लिक करने के बाद अपने आप यहाँ पर ये आपका आ गया यहाँ पर. अब ठीक है, इसका देखिए डिफॉल्ट नेम क्या है, टेबल 1. क्या नाम है इसका, टेबल 1. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने समझा यहाँ पर कि जब हम क्रिएट टेबल पे क्रिएट करते हैं, जब हम टेबल क्रिएट टेबल पे हमने क्या किया है, डबल क्लिक किया है, ये विंडो आपके सामने आ गई. इस विंडो में देखा जाए ये डिज़ाइन व्यू है और यहाँ पर हम केवल टेबल के स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं. हम डिसाइड करते हैं कि कॉलम का नाम क्या होगा, जितने भी कॉलम आपको लेने हैं एक टेबल के अंदर. ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है यहाँ पर स्टेप नंबर 1 के हिसाब से. स्टेप नंबर 1 के हिसाब से सबसे पहले आपको जाना है यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल. इसमें आपको जाना है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर हम फील्ड को डिसाइड करेंगे. पहले मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करके टेबल विजार्ड आपके सामने आ गया. इसमें आपको देखेंगे कि यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं. देयर आर 2 कैटेगरीज. नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 पर्सनल. ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सैंपल टेबल के रूप में कई सारी चीज़ें हैं कि किस आपका यहाँ पर जो टेबल बनानी है किसके लिए बनानी है यहाँ पर. ठीक है, तो आप देखते रहेंगे बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है. सपोज करिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया एम्प्लॉय. अब एम्प्लॉय के अंदर जो इनके हिसाब से जो कॉलम्स बन सकते हैं वो उन्होंने इसकी लिस्ट यहाँ दे रखी है. अवेलेबल फील्ड्स ये रहे. अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है. नाम के लिए देखिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करिए. आप स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए फर्स्ट नेम कहाँ लिखा हुआ है. आप नीचे स्क्रॉल करिए, ये रहा आपका फर्स्ट नेम. और देखिए ये वाला बटन आपका एक्टिव हो गया है, ये आपका है. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट नेम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा सेलेक्टेड फील्ड में आपका इस, यानी कि आपने इस फील्ड को सेलेक्ट किया है अपने कॉलम्स के लिए. ठीक है, तो आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा. ये मैंने क्लिक कर दिया और ये आपका आ गया. फर्स्ट नेम के बाद अब आपको क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर, लास्ट नेम. देखिए लास्ट नेम कहाँ लिखा हुआ है ये. ठीक है, ये रहा आपका लास्ट नेम और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया. तो यानी कि 2 आपने एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया. ठीक है, फिर इसके बाद एम्प्लॉय आईडी हो गया. आगे हम देखते हैं अगर हम उसका मोबाइल नंबर लेना चाहें मोबाइल नंबर ले लेते हैं. यहाँ पर मोबाइल नंबर के बाद अगर आप यहाँ पे एड्रेस लेना चाहें तो देखिए एड्रेस कहाँ पे लिखा हुआ है. आप इस तरह से इसको आप बिल्कुल स्क्रॉल करिए. ठीक है, ये रहा आपका एड्रेस और एड्रेस हमने इंसर्ट कर दिया. ठीक है, टोटल आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक आपने जो कॉलम डिसाइड किए हैं टोटल 5 कॉलम आपने डिसाइड कर लिए हैं. ठीक है, चलिए हम इतने को ही समझते हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली दीज थिंग्स. नाउ स्टूडेंट्स विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. आफ्टर क्लिकिंग द नेक्स्ट बटन, ओके, हमें क्या करना है नाउ. सेकंड इज यू हैव टू सेट द टाइप्स एंड फॉर्मेट. ठीक है, क्या करना है आपको, अब आपको डेटा टाइप सबका डिसाइड, जितने फील्ड है उसी हिसाब से डेटा टाइप आपको सेलेक्ट करना है. चलिए देखते हैं. ये तो आपके स्टेप्स हैं. ये यहाँ देखिए सेलेक्टेड फील्ड जो सेलेक्ट किए हैं आपने और यहाँ पर फील्ड की इंफॉर्मेशन है. अब आपका फर्स्ट नेम वो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए. यानी कि अब आपको डिसाइड करना है कैरेक्टर लेना है या फिर वर्ड लेना है. कैरेक्टर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, केवल आपको यहाँ पर लिमिटेड कैरेक्टर से ही इंसर्ट कर सकते हैं. वर्ड लेंगे तो आपको वेरिएबल लेंथ के आप इसमें टेक्स्ट ले सकते हैं. देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 50 आ रहा है. आप इसको यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं आप. ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आपको लगता है कि चेंज करना है तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके आप चेंज कर सकते हैं आप. ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट नेम, यहाँ भी देखिए आपका ये अपने आप आ गया. ये टेक्स्ट कुछ नहीं करना है आपको. एम्प्लॉय आईडी ये देखिए इंटीजर की फॉर्म में है तो इंटीजर की फॉर्म में आप ले सकते हैं. अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ जाके आप इंटीजर टेक्स्ट वगैरह जो भी कुछ लेना चाहें आप ले सकते हैं आप.
मोबाइल नंबर, ये भी आपका देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मोबाइल नंबर तो टेक्स्ट होता नहीं है, इंटीजर की फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे इंटीजर कहाँ लिखा हुआ है, ये आप इस तरह से सर्च आउट करिए यहाँ पर, ये रहा आपका इंटीजर, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पर 10 आप मिल रहा है यहाँ पर। एड्रेस आपका वर्कर होगा 200, इसकी लेंथ हमने डिसाइड कर ली यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये ऊपर नीचे आपको डिसाइड करना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी पहले आना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको एक एक करके ऊपर आप कर सकते हैं आप, ठीक है। कुछ आपको अभी भी लगता है कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, सो अभी तक हमने क्या क्या समझा, हमने केवल हमने 2 स्टेप्स को देखा। पहले स्टेप में क्या समझा हमने, फील्ड को सेलेक्ट किया। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, जो आपके टाइप्स हैं और जो फॉर्मेट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करना है बेटा, अब हमें यहाँ पर एक प्राइमरी की सेट करना है। स्टेप नंबर 3 क्या है, प्राइमरी की। तो सबसे पहले प्राइमरी की के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आप समझिए कि की का मतलब मैंने आपको यहाँ बता रखा है पहले से ही। की का मतलब मैंने बताया था चाबी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इस तरह की चाबी की बात कर रहे हैं जिससे कि आपको फिर जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है वो आपको मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जाते हैं फीस जमा करने के लिए, फीस जमा करते समय आप ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो भी क्लर्क है वो आपसे पूछते हैं कि एडमिशन नंबर क्या होगा। एडमिशन नंबर आपने बताया, और जैसे ही एडमिशन नंबर बताया और अपने उन्होंने इंटर किया, इंटर करके सारी डिटेल आपको मिल जाती हैं। यानी कि वो जो एडमिशन नंबर है वो बिल्कुल यूनिक है, और उसी की हेल्प से आपका डेटाबेस यहाँ पर सारा कुछ डेटा आपका फिल्टर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज द वन काइंड ऑफ की थ्रू विच यू कैन हैव द फिल्टर डेटा, एंड वट एवर द प्राइमरी की यू वांट में दैट शुड बी यूनिक, like your Aadhaar number, mobile number, these things are correct, comes under the unique key, right? Okay, so this is all about your primary key. Now we have to set it. Okay, हमें इसको सेट करना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ देखना है, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ प्राइमरी की, ठीक है। यूज द एग्जिस्टिंग प्राइमरी की, और यहाँ पे लिखा है डिफाइन प्राइमरी की एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड। कभी कभी ये होता है कि जब हम प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं तो एक की से हमारा काम नहीं चलता है, 2-2 चीज़ें 3-3 चीज़ें हमें कंबाइन करनी पड़ती हैं, तब जाके हम प्राइमरी बना पाते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को अगर हम यूनिक कर दें यहाँ पर, तो वो प्राइमरी की बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लिया और उसे हमने बना लिया यहाँ पर, क्या बना लिया यहाँ पर, प्राइमरी की बना लिया। अब इतना करने के बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अब हम आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आ गए हैं हम, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमारी जो टेबल है उस टेबल का नाम क्या हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉयज, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या लिखा है, टेबल का नाम क्या हो, एम्प्लॉयज, ठीक है। यहाँ हो गया। फिर इसके बाद लिखा है व्हाट यू वांट टू नेक्स्ट, अगला क्या करना चाहते हो आप। इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, जो टेबल डिजाइन को मॉडिफाई करना है, क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल, ठीक है। तो इतने सारे काम हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले ऑप्शन को रहने देते हैं और अब हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। अब मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस का। अब आपको याद आ रहा होगा यहाँ पर मैंने जिस तरीके से मैंने आपको पहले क्लिक किया था, जब हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो इस तरह की कुछ विंडो आई थी, लेकिन वहां पर इस तरह का जो फील्ड का नाम है वो नहीं था। इस समय देखिए बेटा, इस समय जो व्यू है वो डिजाइन व्यू नहीं है, यहाँ पर क्या है, टेबल डेटा व्यू, यानी कि हम इस समय डेटा व्यू में हैं, जहां पर आपको कॉलम का नाम आपने फिक्स कर दिया है। बस अब आप रिकॉर्ड की एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, so students, now I hope you able to understand each and everything what I'm trying to demonstrate here. Okay, till now we are trying to understand how to create your table using the table wizard. For having the table wizard you have to use this one, use wizard to create table. इस वाले बटन को आपको याद करना है कि यही वो बटन है जिसकी हेल्प से हमें टेबल विजार्ड मिलेगा। अब कोई पूछ ले आपके टेबल विजार्ड में कितने आपके स्टेप्स होते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर टेबल विजार्ड में केवल 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से स्टेप से बता देता हूँ आपको मैं। पहला स्टेप है यहाँ पर सेलेक्ट द फील्ड्स। स्टेप नंबर 2 क्या है, सेट द टाइप एंड फॉर्मेट। तीसरा स्टेप क्या होगा, सेट द प्राइमरी की। और लास्ट स्टेप क्या होगा, क्रिएट टेबल। तो इतने सारे स्टेप्स हैं, केवल 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और फॉलो करने के बाद हमारे सामने टेबल बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स,
अब हम इस समय आ गए हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्यूज इन लिब्रे ऑफिस बेस। इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू लिब्रे ऑफिस बेस देयर आर टू काइंड ऑफ व्यूज आर देयर। फर्स्ट वन डेटा व्यू एंड सेकेंड वन डिजाइन व्यू। तो पहले हम समझते हैं कि डेटा व्यू क्या है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है टेबल डेटा व्यू। सिंपली इसको डेटा व्यू भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, जब कभी भी हम अपने टेबल को ओपन करते हैं, जैसे मैंने देखिए ये टेबल मैंने बंद कर दिया, आपका बंद हो गया, और यहाँ पर जो टेबल की जितनी भी टेबल आप बनाएंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखती जाएगी। अब अगर मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, जैसे डबल क्लिक किया तो आपका डेटा व्यू ही खुलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको डिजाइन व्यू खोलना है तब हम क्या करेंगे, अगर आपको डिजाइन व्यू खोलना है तो हम क्या करेंगे अब, ठीक है। तो डिजाइन व्यू को खोलने के लिए मैं स्टेप्स अभी आपको बता देता हूं। मैं फिलहाल हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिजाइन व्यू। ओके, यू कैन क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू। यू कैन क्रिएट अ टेबल जस्ट बाय डिफाइनिंग द फील्ड नेम एज वेल एज फील्ड टाइप। वहां पर क्या कर सकते हैं आप, फील्ड का नाम बता दीजिए, फील्ड का टाइप बता दीजिए, और उसके बाद आपकी टेबल वहां पे इमीडिएटली उसका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको ध्यान होगा, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब मैंने वहां पर बताया था कि डिजाइन व्यू में केवल टेबल का स्ट्रक्चर ही डिफाइन करते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कॉलम का नाम क्या हो, उसका डेटा टाइप क्या हो, दैट्स इट, और कोई काम नहीं करते यहाँ पर। टेबल में डेटा एंट्री का काम तो ये तो हम बाद में हम देखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर केवल हम इतना समझते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। दो तरह का व्यू है, एक है आपका डेटा व्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेबल को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, आपको डेटा व्यू मिलेगा, और उस डेटा व्यू की हेल्प से एक एक करके हम रिकॉर्ड को हम इंटर करते जाएंगे। हम डिजाइन व्यू में ये केवल ऐसा व्यू है जिसमें कि हम केवल टेबल के स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, डिजाइन व्यू का अब मैं आप ओपन करने जा रहा हूं मैं इस समय। ओके स्टूडेंट्स, so first of all what you'll do here, just make a right click here by selecting the table and then click on edit. Once you click on it, now you are able to see here table design. This is the design view, and in this you have to see here these are the field names and these are the data type what you have defined here, right? And if you want to click on any of the, then you are able to see the length। जितना भी आपने डेटा टाइप के हिसाब से लेंथ बनाया है, बताया है, वो आपको लेंथ यहाँ पर दिख जाएगी, सारा कुछ आपको, ठीक है। एक एक करके फील्ड सेलेक्ट कर जाइए और यहाँ पर आप सबकी लेंथ आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दें, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा की बना हुआ है। इफ यू हैव सीन दीज काइंड ऑफ की ओके बिसाइड्स योर कॉलम नेम, इट मीन्स दिस फील्ड इज नथिंग बट इट्स अ प्राइमरी की। ये क्या है, प्राइमरी की है ये, ओके। इसी की हेल्प से हम यहाँ पर कुछ डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करा सकते हैं, रिट्रीव करा सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम आगे समझेंगे कैसे रिट्रीव कराना है ये। फिलहाल यहाँ पर आप इसका मतलब समझिए कि इस चाबी का मतलब है प्राइमरी की है ये, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने अगर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही आपको डेटा व्यू आपको दिखेगा, और अगर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर यहाँ एडिट पे गए तब आपको मिलेगा यहाँ पर डिजाइन व्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पे डिजाइन व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा एक फील्ड का ग्रिड है ये क्या है, फील्ड ग्रिड है ये। यहीं पर आपको फील्ड का नाम और फील्ड का टाइप आपको दिखेगा। तो फील्ड का ग्रिड कहाँ से है, यहाँ से लेकर पूरा ये, और नीचे देखिए क्या है आपका फील्ड प्रॉपर्टी। जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी नीचे आपको दिख जाएगी यहाँ पर। लेट मी मैक्सिमाइज इट। ये देखिए मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, और यहाँ पर जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज है, जो डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पर दिखेगी आपको, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है यहाँ पर, इनसाइड द डिजाइन व्यू यू आर हैविंग टू काइंड ऑफ two parts. Number one, field grid. Number two, field property. ये दो चीजें हैं, दोनों को आपको यहाँ पर समझना है आपको। फील्ड ग्रिड मतलब जहाँ पे आप सारा जो फील्ड नेम है और जो चीजें हैं वहाँ पे एक एक करके आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप,
फील्ड का नाम और फील्ड का टाइप। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट आपको दिखेंगी, कुछ चेंजेस करना है तो आप वहां पे रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहां पर अभी तक जो आपने देखा, यहां पर पूरे एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की और समझने के बाद अब यहां पर आपको जो डेटा व्यू में जो आपको जो डिजाइनिंग है, आपके टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप यहां देखिए, जैसे एम्प्लॉय कोड, अब मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूं मैं 101 फर्स्ट नेम। अब आप यहां पर टैब की हेल्प से अगले बॉक्स में जा सकते हैं आप। जैसे फर्स्ट नेम दे दिया मैंने यहां पर मुकेश, टैब प्रेस किया, नेक्स्ट वाले में आ गया, यहां मैंने दे दिया वशिष्ठ, ठीक है। मोबाइल नंबर दे देते हैं कोई भी, ये हो गया मोबाइल नंबर। कोई भी एड्रेस दे देते हैं यहां पर, सपोज करिए मैंने दे दिया यहां पर वाराणसी। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब ठीक है। एम्प्लॉय आईडी दे दिया मैंने, नेक्स्ट। फिर इसके बाद कोई नाम दे देते हैं यहां पर। अब आप यहां पे अपने मर्जी से किसी भी तरह का डेटा आप डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नेम, यहां मैंने लिख दिया जैसे नितेश शर्मा लिख दिया। मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। और इनकी लोकेशन लिख देते हैं यहां पर धामपुर, ठीक है। तो इस तरह करके आप यहां पर बारी बारी से करके आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह करके आप। तो आई थिंक and I'm sure also that you are able to understand each and everything what I'm trying to deliver in this video, okay। स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं और मैं लगातार आपकी क्वेरीज को रिप्लाई भी करते चल रहा हूँ साथ के साथ, okay। But still if any of the doubt, any of the query is still pending, you can also get in touch with me on my personal WhatsApp number also, right। So students, thank you for watching this video. Keep watching the other videos also so that you can have the clear cut idea about each and every key points and important things which is related to your LibreOffice base, right students। So we'll meet in next video with the new topic, and in what we are going to understand in the next video, let me give you a little bit idea about it so that your curiosity getting increased, okay। So we'll have a new chapter in the next video, and in this we're going to understand about what are the important operations we're going to perform on the table, like deletion, sorting, insertion, editing. These things we're going to discuss in this, right? Okay, so now students, it's time to have a finish of this video, and we'll meet in next video. Thank you for watching.